Hi guys, ever felt confused with the business terms like BCG metrics or SWOT? Don't worry, I am Priya and you are watching Quick Brainy Bites where learning becomes short, smart and super easy. So, today's topic of the video is Boston Consulting Group metrics, that is BCG metrics, that helps businesses to decide where to focus money, marketing and innovation. Yes guys, because we can see that a specific business company is producing various types of products and various types of product category also, so they don't know where to focus, where to invest much, where to divest, where to harvest likewise. So this BCG matrix helps to take these types of decisions easily. So let's moving deeply, we can see a BCG matrix that consists of x-axis, that is market share, and y-axis, that is market growth, where market growth means the growth or shrinking of specific industry or market, and market share means a total percentage of sales of a specific company in an industry. So, moving forward, we can see that four quadrants are there: star, cash cow, question mark, and dog. So, diving deeply, first quadrant, that is star, that means company's shining product. मतलब कंपनी का सबसे फेमस प्रोडक्ट है उस इंडस्ट्री में और अर्निंग अ लॉट ऑल्सो, बट समवेयर नीड्स इन्वेस्टमेंट टू स्टे ऑन टॉप, or we can say to stay as a leader in the market. So I am just taking an example of a company, that is Apple, whose shining product is iPhone 17 Pro Max. Yes, this is very shining product of a Apple company and also needs continuous investment to become a to stay as a leader in the market. Then next quadrant is cash cow. That means a mature product that doesn't need much investment but keeping keep giving profit regularly. मतलब कि इसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, उसको मार्केटिंग की या किसी की भी जरूरत नहीं है, वो इनफ मैच्योर हो चुका है कि अब उसमें मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, वो आपको उसका प्रॉफिट देता ही रहेगा. और वी कैन सी दिस आईपैड और वी कैन से मैकबुक, मतलब ये जो है वो आपको कंटिन्यूअस प्रॉफिट देता ही रहेगा. पीपल आर परचेजिंग दिस लाइकवाइज. देन थर्ड क्वाड्रेंट इज क्वेश्चन मार्क, that is new or uncertain product, market is growing fast but the product isn't a big player yet. मतलब ये जो है एप्पल टीवी, ये उतना फेमस नहीं है बट अभी हाल में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, थोड़े ही साल में, मतलब 2-3 साल में ही ये इंट्रोड्यूस हुआ है और इतना बिग प्लेयर नहीं है टीवी के मार्केट में ऐसे. Then fourth and last quadrant, that is dog, that is fading and outdated products, no growth, no major profits. Yes, we can see this music system iPod. तो उसका मतलब अभी क्या है कि वो पूरा ग्रोथ जो है ना वो हट ही गया है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से मार्केट में से फेड ही हो गया है. तो मतलब ये जगह पे कंपनी को क्या करना रहेगा कि मैं उसको पूरी तरीके से हार्वेस्ट ही कर दे लाइकवाइज. ठीक है. तो here are some I just made a matrix of HUL, that is Hindustan Unilever Limited shops. So here you can see Surf Excel, that is a shining product of a HUL shop. Then second cash cow, that लाइफ बॉय. तो लाइफ बॉय आपको पता है कि चाइल्ड के लिए सब लोग खरीदते ही है, ऑलमोस्ट मतलब सब लोग खरीदते ही, मतलब कोई ही होगा तो जो अपने चाइल्ड के लिए नहीं खरीदता होगा. देन दैट इज लव ब्यूटी एंड प्लानेट. तो मतलब उसका जो शेयर है वो मीडियम है, उतना खास नहीं है, उसमें या तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो हम डाइवेस्ट कर सकते हैं. और पियर्स, तो जो पूरी तरीके से आउटडेटेड हो गया है, उसका कोई मतलब इतना ज्यादा है नहीं, धीरे धीरे वो फेड हो रहा है मार्केट में से इस तरीके से. सो मूविंग टूवर्ड्स the another topic, that is strategic actions, or we can say what next, the steps to be taken at the time of various situations, that is star, cash cow likewise. So if a product is star, then you have to do invest to maintain leadership. Yes,
एज आई टोल्ड कि आईफोन 17 प्रो मैक्स में हमें मार्केटिंग जो है उसका वो सही तरीके से रखना होगा कि जिसकी वजह से वो लीडर मार्केट में बना रहे। देन कैश काउ, तो कैश काउ में क्या रहेगा कि हार्वेस्ट प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट्स जो है वो जितना हो सके उतना हमें कमाना है उसमें से। थर्ड वन इज एनालाइज एंड इन्वेस्ट सिलेक्टिवली। यस, जैसे हमारा जो थर्ड अगर हम बताए तो वो क्या था, लव ब्यूटी एंड प्लानेट वाला था क्वेश्चन मार्क में। तो हमें उसमें सही से एनालाइज करना है कि किस तरीके से वो मार्केट में उसका शेयर है, कितना है, तो उस तरीके से हमें उसमें इन्वेस्ट करना रहेगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि या तो उसको इन्वेस्ट करना रहेगा या तो पूरी तरीके से हार्वेस्ट करना रहेगा, ऐसे। एंड लास्ट इज डाइवेस्ट और डिसकंटिन्यू, मतलब या तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम कर दो या तो पूरी तरीके से उसको डिसकंटिन्यू ही कर दो पीयर्स को, लाइक, ठीक है। फिर मूविंग टूवर्ड्स द अनदर टॉपिक दैट इज एडवांटेजेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो फर्स्ट वन इज रिसोर्स एलोकेशन। यस, एज आई टोल्ड कि ये क्या करता है कि बिजनेस को हेल्प करता है कि किसमें कितना हमें इन्वेस्ट करना है, किसमें कितना रिसर्च करने की जरूरत है, तो ये हमें इतना हेल्प करता है। ठीक है, रिसोर्स को एलोकेट करने में हेल्प करता है, मनी बोल दो, रिसर्च बोल दो, जो भी बोल दो। सेकेंड वन इज सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स पोर्टफोलियो डिसीजंस। यस, एज वी नो दैट, एज आई टोल्ड कि भाई इसमें या तो हमें इन्वेस्ट करना रहेगा क्वेश्चन मार्क में, या तो हमें डाइवेस्ट करना रहेगा, और इसको पूरा डाइवेस्ट करना पड़ेगा या तो डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें बीसीजी मैट्रिक्स हेल्प करेगा कि हम सही से डिसीजन ले बिना कोई भी हिचकिचाहट से। देन थर्ड वन इज हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक बैलेंस। तो एज वी कैन सी दैट ये क्या रहेगा कि हमको बताएगा कि हमें कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, कहाँ पे कम मिल रहा है, कहाँ पे ज्यादा रिस्क है, कहाँ पे कम रिस्क है, किस बाजू किस रास्ते पे हमें चलना है, तो ये बता देगा हमको सही तरीके से। ठीक है, वरना क्या होगा, हम पूरी तरीके से तराजू में से गिर जाएंगे। ठीक है, then next one, I just mentioned here the previous year questions, and I also attached the PDF of the answers also, so please go through that PDF so you can have a good idea of that PDF. Thank you so much guys, I hope this video will helpful to you for the exam, and also please comment on my video of another topic you need explanation for the same. Thank you so much guys for watching my video, and best of luck for your exam guys.